Hello guys, welcome to the Tantrada Upskills. My name is Kiran. Welcome to the demo session of Python Full Stack. Let's begin our journey for Python Full Stack. So let us take a brief look at Python Full Stack program. So what we are going to cover into the Python Full Stack program. So here is your Python Full Stack program, which include Python, CSS, HTML, which going to cover your front end, and we have a Django SQL, which take care of your backend. We will have API also, which going to interact with your backend as well as to the front end. So let's take a brief look at our Python full stack detailed syllabus. So here we are with our Python full stack detailed syllabus, which going to include our introduction class. Then we will have our Python little bit of history. Then we are going to have how to install our Python. There are IDs that means the software which we are able to which we can able to run our Python, which when where we can able to our we can run our code. Then we will have our data sets, basic type of data structures. There we are including list, tuple, set, dictionary and strings. Then we will have our arithmetic operators, like what are those operators. You can pause and take a brief look at our syllabus also. We will have our conditional statements, control statements, the like loop and if else, all those statements are given over here. We will have our functions, and then we will have our zip codes, we will have our zip functions, we will have our multiple functions like lambda, map, filter, reduce. All of these we are going to cover. Then here we are ending up with our basic Python. Then we will have our base advanced Python also for those who wish to join for the development also. There we are going to cover our ops concept, our classes and objects. Then we will have our inheritance, super methods, what is overriding, what is overloading. Then we will have our modules, like what is module and how we are importing uh, multiple modules into the files. We will have our packages installed, how to install the other packages from other sources. Then we will have our exceptional handling, like error handling and all that. We will have our try except. Then we will have a file handling library we are going to study. We will going to study multiple, like time module we are also going to study. We are going to study multi-threading, multi-processing, and one of the important topic like garbage collection. Here you are ending up with the basically Python syllabus. Then we will have our Django. In Django, what you can do is you can design your own website. You can create your own website. There we are going to study the CRUD operations, like how to add how to add some data to the your your backend, your table. Then we will have a data cleaning. Then multiple operations regarding to the Django. We will have our SQL. So here we are covering your full backend part. So SQL and Django will will be connecting to each other, so that you can able to store your data from the forms, so that you are going to study for sure. Then for that we need to create web pages. For that only we are going to study your HTML and CSS for here. Then of course we will have our projects. In- uh, we will have our projects. Some of the projects are listed over here. Maybe these can some of the domain you can say. So here we are ending up with our course syllabus. So let's begin with our course right now. So here, what is Python basically? Python is a basically programming language which was invented in 1989. Uh, as you compare the Java, which is newer one, which is developed or which is invented
in 1995. But when Python was developed in 1989, it was just for a practical purpose initially. Then it was open sourced in 1991, and obviously it was developed by Guido van Rossum. He was actually impressed with the British comedy series, mm, which is Monty Python's Flying Circus, and basically he named his program after the uh, the program. It is not the snake. It is not the snake's name. Okay. Uh, it is basically open source Python community. Open source Python community which handles the Python for now. Okay. So again, next question is, why is Python? So basically, Python is a free language, and it is openly available to all. It doesn't require any license. It is open source. Open source is basically, if you want to, means in future, if you want to change something into the language syntax and all that, we can do that. So basically ये जो community है python python की जो community है, जो open source जो वो manage करते हैं, वो सब ये गिटहब पे कोड है, एक बार रिव्यू करती है आपके चेंजेस, और अगर इम्पोर्टेंट है ये चेंजेस या फिर चेंज करने के लायक है तो वो चेंज कर देती है. इसको बोलते हैं ओपन सोर्स. अभी जैसे कि PHP है, .NET है, जावा है, सी है, ये सब भी ओपन सोर्स में ही आती है. और ये जो विजुअल बेसिक है, SQL है, वो ओपन सोर्स नहीं आती, इनके अलग से डेवलपर टीम रहते हैं या फिर जो भी है. तो no common people like us don't have access to change these languages. ओके. जनरल पर्पस लैंग्वेजेस है, मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए आप पाइथन इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली बहुत ही इजी लैंग्वेज होने के कारण ये वाइडली यूज़ होती है. ह्यूज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज है अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए. बेसिकली पाइथन अभी अभी इतना पॉपुलर होने का कारण ही यही है कि उसमें ह्यूज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज बोल सकते हैं आप. और भी इसके एडवांटेजेस है, लाइक पाइथन इज़ हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल मीन्स we can we can easily understand the language. It is basically written in English, we can read it. So basically that is called as a high level language. दो कैटेगरीज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज यानी जो लैंग्वेज मशीन को समझ में आती है, जो लेवल, और हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हम रीड कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज. इसके आगे का जो है इजी टू लर्न, वो हमने पहले ही देख लिया. बहुत ही इजी लैंग्वेज है लर्न करने के लिए, बिगिनर्स के लिए. इसीलिए भी इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है फ़िलहाल. पाइथन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट माने, अगर आपका कोड, सोचो आपने विंडोज़ पे राइट किया है, कल आपको जाके ऐसा लगे कि मुझे ये लिनक्स पे भी चलाने का है, तो इजीली आप कोड आपका लिनक्स पे भी चला सकते हैं. इसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. देयर मे बी रिक्वायर्डिंग सम लाइब्रेरीज नीड टू बी इंस्टॉल्ड, बट दोज आर anyways platform independent, so you can easily run your code at any platform. Okay. It is ये डायनामिकली टाइप है. इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम बाद में भी देखने वाले. फ़िलहाल ऐसा समझ लीजिए कि सोचो आप सी का एग्जांपल लेते हैं. सी में कैसा होता है, आपका जो भी इंटीजर है या फिर जो भी आपका वेरिएबल है, तो वेरिएबल का टाइप आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है. यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो,
ये स्ट्राइक आउट किया है। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था इंटीजर, INT माने इंटीजर, A कॉमा B कॉमा C। तो मैंने A B और C को एज ए इंटीजर डिफाइन किया है, इंटीजर डिक्लेयर किया है, जिसमें वैल्यू असाइन होने से पहले मैंने ये डिक्लेयर किया है। तो ये सब हमें पाइथन में नहीं करना पड़ता है। हम ऑन दी फ्लाई वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, उसमें वैल्यू पुट ऑन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है a = 10। सो मैंने डायरेक्टली a को वैल्यू असाइन करी 10 और उसका टाइप भी इसी में आ गया। मतलब अगर ये 10 है तो ये डेफिनेटली इंटीजर ही होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे दिया है b = 20। अगर मैंने b = 20.2 दिया होता तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल b वाला जो वेरिएबल है उसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइप एज अ फ्लोट आता। और सेम एज दैट केस a प्लस बी, माने ये a और ये b, इसका एडिशन होके ये c में स्टोर हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम डायनामिकली टाइप। हमें इनिशियली कोई वेरिएबल का टाइप असाइन नहीं करना पड़ता है। और ये है इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। इसका भी एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखने ही वाले हैं, बट फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इसमें कंपाइलर नहीं होता है। कंपाइलर होता है इन सेंस, बट सेपरेट कंपाइलर नहीं होता है, बिल्ट इन कंपाइलर रहता है। तो ये वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। एक लाइन हो गई, कोड एग्जीक्यूट करता है, दूसरी लाइन कोड कंपाइल, कोड इंटरप्रेटेड है, कोड एग्जीक्यूटेड। ये उसका फ्लो रहता है, ना कि पूरा कोड रीड होने के बाद पूरा कंपाइल होगा, उसके बाद इंटरप्रेटर को जाएगा और फिर आपको आउटपुट दिखाएगा। ऐसा नहीं होता है पाइथन में। ये डायरेक्टली लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस है। और भी इसके एडवांटेजेस अभी यूज़ केसेस अगर बोला जाए तो फ़िलहाल ये इमेज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वेब डेवलपमेंट यानी जो भी हमारी वेबसाइट्स है, स्टैटिक वेबसाइट हो, डायनामिक वेबसाइट हो, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मशीन लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा पाइथन इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अगेन उसका ये जो नंबर ऑफ़ लाइब्रेरीज़ है ये भी मेजर रीज़न बताया जाता है। और बहुत इजी भी है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव वेयर टू पाइथन। मतलब हम पाइथन इस्तेमाल कैसे करें, कहाँ पे करें। ऑब्वियसली इन एट एनी प्लेटफॉर्म यू कैन यूज़ इट, बट स्पेशल टर्म रहता है, आईडी बोलते हैं हम उसको। आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जो ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हम पाइथन का कोड कर सके, जिसका सिंटैक्स उसके इंटरप्रेटर तक पहुँच सके और वो इंटरप्रेटर सक्सेसफुली हमें उसका आउटपुट दिखा सके। तो ऐसे बहुत सारे इंटरप्रेटर्स है या ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है पाइथन के लिए। सबसे बेसिक आता है ये आइडल, प्री इंस्टॉल्ड आता है पाइथन जब भी इंस्टॉल करते हैं हम, जिसको थर्ड पार्टी या फिर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। उसके बाद आता है, उसके बाद तो ऐसा कुछ हायरार्की ऑर्डर नहीं है, जस्ट यहाँ पे दिखाया मैंने। ऐसा कुछ हायरार्की नहीं है। पाइचाम होगा, विजुअल VS कोड हो गया, स्पाइडर हो गया, या फिर ये एटम हो गया। हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे भी चला सकते हैं। जुपिटर हो गया। ये सारे जो भी है ये ऑफलाइन आईडीज़ है। गूगल कोलैब है, या फिर ऑनलाइन, ये एक ऑनलाइन है गूगल का, जिसके ऊपर हम पाइथन अपने सिस्टम में इंस्टॉल करे बगैर गूगल कोलैब पे चला सकते। और बहुत सारे ऑनलाइन इंटरप्रेटर आपको मिल जाएंगे, आप जस्ट गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। बेसिकली हम जुपिटर, VS कोड और पाइचाम, इन सब में कोडिंग सीखने वाले। जो भी डेवलपमेंट का काम है हमारा, वेब डेवलपमेंट का या फिर जो भी है, तो वो हम पाइचाम में या फिर
VS कोड में देखने वाले। मशीन लर्निंग रिलेटेड जो भी स्टफ़ है, जैसे पांडास हो गया, नमपाई हो गया, वो हम जुपिटर में देखने वाले। जुपिटर बेसिकली हमें एनाकोंडा एनाकोंडा एक नाम का सॉफ्टवेयर है, तो उसमें से हम इस्तेमाल करेंगे। जुपिटर नोटबुक या फिर जुपिटर लैब अभी फ़िलहाल नया चल रहा है। नया तो है नहीं, बट उसका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा आ रहा है जुपिटर लैब का, तो हम शायद जुपिटर लैब इस्तेमाल करेंगे इसके आगे। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा पाइथन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। वेब एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस माने वेबसाइट स्टैटिक हो गई, डायनामिक हो गई, कहीं पे भी हम पाइथन यूज़ कर सकते हैं। उसके बैकएंड जो भी चल रहा है वो पूरा पूरा पाइथन रहेगा, मतलब उसका फ्रेमवर्क रहेगा, उसका डेवलपमेंट रहेगा, उसका कंटेंट मैनेजमेंट रहेगा, पूरा पूरा पाइथन में होगा। GUI एप्लीकेशंस, GUI माने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, थिकनर, WX पाइथन और PyQt, ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बेसिकली ये होता क्या है बताता हूँ मैं। जो बटन वाले इंटरफेसेस रहते हैं, माने ओके का बटन या फिर जो भी बटन है जहाँ पे जस्ट यूज़र को क्लिक करना रहता है, उसकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये सारे एप्लीकेशंस भी हम पाइथन में बना सकते हैं। डेटा साइंस एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ह्यूज एडवांटेज फॉर पाइथन यूजर्स। पाइथन जिसको आता है वो इजीली डेटा साइंस स्ट्रीम में अपना करियर बना सकता है श्योरली। बहुत सारे डेटा साइंस में और भी बहुत सारे कंटेंट इंक्लूड है, जैसे डेटा एनालिसिस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, अभी अभी जो चल रहा है वो इमेज प्रोसेसिंग चल रहा है। सो बहुत सारी फील्ड्स, सब फील्ड्स आगे ओपन हो जाती है। मशीन लर्निंग जैसे डेटा साइंस में इंक्लूडेड है। फाइनेंस सेक्टर में भी बहुत सारे ऑटोमेशन जो भी है वो हो रहे हैं। जैसे टैली में भी हम पाइथन इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसको फ्यूज कर सकते हैं। मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ के भी कुछ सॉफ्टवेयर्स है जिसके मैक्रोज हम पाइथन में बना सकते हैं। सॉलिड वर्क्स, सीमेंस, एनएक्स, उनमें से कुछ एग्जांपल्स है। IoT बहुत ही ज़्यादा बूमिंग सेक्टर है, जिसमें बैकएंड में पूरा पाइथन चलता है। जो भी अपना सेंसर से डेटा लेना है, उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग करना है, पोस्ट प्रोसेसिंग करना है, उसका डेटा क्लीनिंग करना है, ये देखो ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है। डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये सब चीज़ें है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो ये सारी कंपनीज फ़िलहाल अभी पाइथन पे यूज़ करती है। नासा वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल, जिसके बैकएंड में पूरा पाइथन चल रहा है नासा, या फिर उसके जो भी कैलकुलेशंस है वो सब पाइथन में चलते हैं। इंस्टाग्राम का जो आपको फीड सजेस्टेड फीड्स आती है, या फिर एक ही टाइप का जो कंटेंट आपको दिखता है, उसका पूरा एल्गोरिदम पाइथन में डेवलप्ड है। नेटफ्लिक्स का भी पूरा एल्गोरिदम पाइथन में डेवलप्ड है। गूगल का यूट्यूब का एल्गोरिदम पूरा पाइथन में डेवलप्ड है। IBM, इंटेल, इन ये जस्ट बस नेम्स है, बहुत सारी कंपनीज और है जो पाइथन इस्तेमाल करती हैं। ओके, ये और कुछ फील्ड्स है जो पाइथन के ऊपर बेस्ड है। वेब डेवलपमेंट हो गई, वेब स्क्रैपिंग हो गई, गेम डेवलपमेंट हो गया, बिग डेटा और IoT। बिग डेटा मतलब ह्यूज डेटा का जो स्टोर रहता है, तो उसके हम अब एलिमेंट में बोल सकते हैं बिग डेटा है। तो ये सब चीज़ें पाइथन पे बेस्ड अभी है। और भी अगर कुछ देखा जाए तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या क्या हम पाइथन के साथ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट तो है हम पाइथन कैसे इंस्टॉल करें। पाइथन के वेबसाइट पे जाओ, गूगल कर लो, python.org पे जाओ, डाउनलोड्स के बटन पे जाओ यहाँ पे। उसके बाद पेज ओपन होगा आपको ये पेज तो ओपन नहीं होगा, इसके पहले एक और पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। हम फिलहाल
3.10 या 3.9 पाइथन पे ही काम करने वाले हैं। अगर सोचो आपको ऐसी कुछ स्क्रीन दिखे जिसमें यहाँ पे लिखा हो दिस इज़ सिक्योरिटी रिलीज, तो ये डाउनलोड नहीं करना है, ये पेज पे आपको जाना नहीं है, ठीक है। इसमें खाली सिक्योरिटी रिलीज रहेंगे, आपको एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आपको चेंज करके अगर ऐसा कुछ दिखता है या फिर ये स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल कर लो 3.10.11, यू विल एग्जैक्टली गेट this kind of pictures, not this picture but you may get some this kind of structure picture where you will find an exe file. Just download that exe file, double click, these are the files which you get on this particular website, this 3.10.11. You need to download your installer according to your system, whether it is Mac, whether it is Windows 64 32-bit, or you can just download as per your can download any version as per your system. Just click here, download will automatically start. After downloading, you will double click that downloaded file. You may get this kind of screen, this kind of pop-up you will have. And just please try to tick this all two buttons. It will automatically add the path to your system. Just keep in mind that this path you need to remember multiple times. You may encounter for this path. Then click next. Okay. Next you will have this all checkbox should be ticked. Go to next. These three checkbox need to be checked. If you want to install for all users, I mean if there are multiple users on your system and if you want to install for all those users, then you can tick this box also. Get this location at your end, then install it. Okay. After installing, you need to tell your system or tell your system variables to have your Python at your system, so that you can use it on CMD command prompt. So basically for that what you have to do, if you have installed your Python for all users, then you need to copy this path or just the path which I have shown over here. If you install for all users, your path may get automatically changed, and if you don't, you have your this kind of path. Your username will be at here. After that, your app data /local /program /python 310. You need to copy this path. Now go to your start button and search for environment variables. After that, open the environment variable. At your advanced tab, go to environment variable. At environment variable, you will find a variable called path. You need to double click that. After you are double clicking, this window will pop up. Don't forget, you have to click for user variables from your username. After that, you don't have to click at this system variables. Just try to click at user variables. Okay. After double clicking the path, you may get a list of this. Go to new list and paste your this path and click OK. Your Python path will be at here. Okay.
go to next. Yes, guys. So let's start with some technical stuff. What is variable? वेरिएबल क्या रहता है? वेरिएबल बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हम अपना इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं. ये बेसिकली एक जगह है जो हमें पाइथन प्रोवाइड करता है, या फिर जो भी कोडिंग लैंग्वेज है वो प्रोवाइड करता है. हमारे टाइप में, हमारे केस में पाइथन हमें ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम अपना इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. अब वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो कौन कौन से टाइप में स्टोर होता है, ये हम बाद में देखने ही वाले हैं. बट फिलहाल अभी के लिए ऐसा समझ लो कि एक कोई ये कंटेनर है जिसमें हम अपना इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं. इंफॉर्मेशन माने क्या है? जो भी अगर अगर सोचो हमें अपना नाम स्टोर करना है कहीं पे, तो जैसे हम अपना जैसे आप अपने मोबाइल में एक किसी का तो नंबर स्टोर करते हैं. तो नंबर तो आप अपन हर टाइम हम नंबर नहीं डायल करते. हम उसको उसके नाम से, मतलब जिसके नाम के ऊपर वो स्टोर हुआ है उसको नाम को सर्च करते हैं और बाद में उसको कॉल करते हैं, ना कि हम नंबर टाइप करके फिर कॉल करते हैं. तो वही है, जिसके नाम के ऊपर वो नंबर स्टोर होता है वो नाम अपना वेरिएबल है और जो नंबर है वो हमारी इंफॉर्मेशन है. सो बात समझ में आई? सो वही टाइप है ये अपने ये केस में. नंबर ये एक नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने 200 ये एक डिजिट है ये स्टोर किया है. सो बेसिकली इसको बोलते हैं हम वेरिएबल डिक्लेयर करना. पाइथन में ये डायनामिकली टाइप रहता है. डायनामिकली टाइप माने ये जो वेरिएबल है इसका टाइप हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता है. अब टाइप मतलब क्या होता है? ये केस में अगर आप देखोगे तो नंबर इज इक्वल टू 200. तो ये 200 है. 200 क्या है? एक कोई तो भी संख्या है. संख्या है माने एक कोई तो भी इंटीजर है और ये उसका टाइप हो गया. मतलब 200 का टाइप इंटीजर हो गया. अगर सोचो मुझे इसमें कुछ तो नाम स्टोर करना है तो मैं नंबर इज इक्वल टू अमित ऐसे स्टोर करूँगा. तो अमित ये हमारी इंटीजर ना होके ये तो स्ट्रिंग हो गई, मतलब ये टेक्स्ट है, ये इंटीजर नहीं हो सकती. सोचो अगर 200.120 ऐसे और कोई भी, मतलब जो भी फ्रैक्शनल फॉर्मेट में है, अगर उसको स्टोर किया तो उसको हम एज अ फ्लोट बोल सकते हैं. तो ये उसका डेटा टाइप हो गया. सो इन ये केस में नंबर इज इक्वल टू 200. तो इसका टाइप हो गया इंटीजर. नंबर जो भी है उसका टाइप हो गया इंटीजर. तो हमें ये एक्सटेंसिवली पहले डिफाइन नहीं करना पड़ता है जैसे हम सी में करते हैं. मतलब जो भी हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसका हमें टाइप पहले डिक्लेयर करना पड़ता है. उसका टाइप हमें बताना पड़ता है कि हम ये नाम का वेरिएबल बना रहे हैं और उस वेरिएबल में सिर्फ उसी टाइप का डेटा स्टोर रहेगा. तो पाइथन हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. पाइथन में हम ऑन दी फ्लाई कौन सा भी डेटा ये वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. सो ये एडवांटेज बोल सकते हैं आप पाइथन का. तो ये नंबर को प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट रहता है. प्रिंट करने के लिए मतलब क्या है? जो भी डेटा हमने वो वेरिएबल में स्टोर किया है वो डेटा हमें दिखाओ. अभी अभी तो हमने फ़िलहाल यहाँ पे यूज़र ने इनपुट दिया है 200. तो ऑब्वियसली वही आने वाला है. जैसे कि आप देख रहे हो आउटपुट बिफोर डिक्लेयर, ये बिफोर डिक्लेयर नाम दिया है उसने और उसका नाम है, ये नंबर आ गया 200 क्योंकि ये नंबर ये वेरिएबल है. ओके. तो अगर पर अगर आप हमको पता नहीं है उसमें क्या वैल्यू स्टोर किया है, कोई तो भी दूसरे सोर्स से डेटा आ रहा है, तो हमें देखना है बाबा क्या स्टोर हो सकता है उसमें, क्या वैल्यूज़ उसमें स्टोर्ड है. तो हम प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं. डोंट वरी, आगे आगे जैसे आप सीखते जाओगे बहुत यूज टू हो जाओगे क्योंकि हर जगह पे प्रिंट स्टेटमेंट लगता है. बेसिकली सबसे बेस्ट एरर या फिर डिबगिंग के लिए सबसे बेस्ट कोई मेथड है या फिर सबसे बेसिक कोई मेथड है तो वो प्रिंट स्टेटमेंट है. अभी डिबगिंग क्या रहता है, एरर क्या रहता है, ये आपको बाद में पता चलेगा.
अभी लिमिटर में ये समझ लो, हम जस्ट जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल में का जो जो डेटा है वो देखने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और वेरिएबल क्या है? एक ऐसी मेमोरी लोकेशन है जो सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो अभी ये तो हो गया 200 का। उसके आगे का एग्जाम्पल देख लो, फिर से नंबर वेरिएबल ही है, और नंबर वेरिएबल में मैंने फ्रैक्शनल डेटा स्टोर किया है। तो इसका डेटा टाइप हो गया फ्लोट हो गया। यहाँ पे था इंटीजर, यहाँ पे हो गया फ्लोट। तो हमें डिफाइन नहीं करना पड़ा है, नंबर मुझे इंटीजर में देना है, स्ट्रिंग में देना है, फ्लोट में देना है, ये कुछ भी हमें डिफाइन नहीं करना पड़ा। ये डायरेक्टली ये 200 को रिप्लेस करेगा 1212.3। जैसे हमने वापस प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, तो प्रिंट स्टेटमेंट में हमें हमारा आगे का आउटपुट दिखा दिया, जो भी हमने स्टोर किया है यहाँ पे वो यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद में हमें आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है? ये भी एक कंटेनर ही है। इसमें भी हम ग्रुप में डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। मेनली 5 टाइप्स है, लिस्ट हो गई, स्ट्रिंग हो गई, टपल, सेट, डिक्शनरी। ये मेन 5 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अदर देन दिस आपको और कोई डेटा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। लिस्ट क्या रहती है, उसका फॉर्मेट भी देख लो। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही मिलेगी। उसमें आप नंबर स्टोर कर सकते हो एक ही साथ उसमें आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो एक साथ, नंबर और स्ट्रिंग एक साथ स्टोर कर सकते हो। उसके बाद आती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब रॉ टेक्स्ट, doesn't require raw text, it is just the text, whatever text you can store it into the multiple formats. So basically one inverted comma, double inverted comma, single but 3 inverted comma, double and 3 inverted commas. So basically ये 4 फॉर्मेट में आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो। स्ट्रिंग माने टेक्स्ट का मतलब कुछ भी है। आप नंबर फॉर्मेट, नंबर सेव कर सकते हो, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, बट ये आएगा टेक्स्ट ही। उसका नंबर का जो उसमें अरिथमेटिक एप्लीकेशंस नंबर पे कुछ नहीं होंगे, उसको वापस से आपको टाइप चेंज करना पड़ता है। वो सब बाद में देख लेंगे पहले अपन। टपल, टपल में राउंड करली राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, जिसमें भी आप सेम नंबर और स्ट्रिंग स्टोर करते हो। सेट, जिसमें भी आप नंबर और स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, या ये बस करली ब्रेसेस में होता है। सबका अलग अलग एप्लीकेशन है, बाद में ये सब हम देखने वाले हैं। हर एक का एप्लीकेशंस, हर एक के मेथड्स अलग अलग है, हर एक का पर्पज़ अलग अलग है, हर एक का एडवांटेज डिसएडवांटेज अलग अलग है। सबसे लास्ट में आती है डिक्शनरी। डिक्शनरी और लिस्ट मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर्स है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिक्शनरी में हम की और वैल्यूज़ के फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर दें। की वैल्यू फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट क्या है, लिस्ट का फॉर्मेट क्या है, ये सब डिटेल में हम देखने वाले हैं। फ़िलहाल इंट्रोडक्शन के लिए हम एक एग्जांपल के तौर पे एक दूसरा एक्चुअल पाइथन में कुछ तो भी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। यस, तो गाइज ये है हमारा जुपिटर नोटबुक का यूज़र इंटरफेस। बेसिकली ये ओपन होता है हमारे वेब ब्राउज़र में। सबसे बेसिक और सबसे पहला प्रोग्राम, कोई भी आप लैंग्वेज सीख लो, एक ही स्टेटमेंट मोस्टली सिखाया जाता है, जो कि है हेलो वर्ल्ड। सो पाइथन का एक सिंटैक्स है प्रिंट करने के लिए, स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए, आउटपुट प्रिंट करने के लिए, वो है प्रिंट और ब्रैकेट। इसके अंदर आप जो भी डालोगे वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमें स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। तो स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए जैसे मैंने दिखाया था,
एक इन्वर्टेड कॉमर्स, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, यस। सो आप पाइथन डेवलपर बन गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसी बात नहीं है। उसके बाद हम और एक देख लेंगे, लिस्ट क्या होती है। सो लिस्ट इसको लिस्ट, सो लिस्ट को ऑलवेज रिमेंबर गाइस, कोई की कीवर्ड्स है पाइथन में कुछ, जैसे कि लिस्ट हुआ। इन बाकी सब कीवर्ड्स की जानकारी हम आगे में लेने वाले हैं ऑब्वियसली, तो ये हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिलहाल मैं ये ट्रायल लिस्ट नाम की एक लिस्ट बनाता हूँ। मैं ये ट्रायल लिस्ट नाम की लिस्ट बना रहा हूँ, मतलब ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ट्रायल लिस्ट नाम का एक वेरिएबल है जिसमें जिसमें हम लिस्ट के कुछ भी कंटेंट अब हम स्टोर करने वाले हैं। ओके, पाइथन, जावा, उसके बाद 12.5, उसके बाद 16.5। तो गाइस आप देख रहे हो कि मैंने 12.5 या फिर 16.8, तो ये अलग अलग लिखा है। जैसे कि 12.5 को मैंने इन्वर्टेड कॉमास नहीं दिया है और यहाँ पे दिया है, तो ये जो होगा ये स्ट्रिंग हो गई क्योंकि इसको इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लूडेड है। और ये जो है ये पूरा फ्रैक्शन में है, तो ये हो गया उसका डेटा टाइप फ्लोट। और ये जो आगे में 1 और 2 लिखा है वो हो गया इंटीजर डेटा टाइप। ये तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग में ही कंसिडर करने वाले। जो भी कंटेंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चला गया उसमें स्ट्रिंग कंसिडर होना है, जो भी कुछ भी हो जाए। ओके, इसको हम स्टोर करेंगे। क्या सिंटैक्स एरर आ गया भाई, यहाँ पे कॉमा रह गया। ओके, ये सिंटैक्स एरर, यहाँ जो भी एरर्स आते हैं वो एक बार मतलब शुरू से ही हम उसको मेमोराइज़ करेंगे या फिर शुरू से ही उस पर ध्यान रखेंगे कि कौन से टाइप का सिंटैक्स एरर आ रहा है। ये हमें आगे में बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। देखेंगे क्या क्या उसका यूज़ है। ये हो गई हमारी लिस्ट स्टोर। अगर हम उसको एक्सेस करेंगे, ये लो, ये हो गई आपकी लिस्ट। उसका अगर टाइप चेक करेंगे हम, टाइप ऑफ ट्रायल लिस्ट, तो ये बोल दिया आपको ये लिस्ट है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये हम डिटेल में हमारे कोर्स में देखेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग।